ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। x = u cos alpha t, y = u sin alpha t minus half gt square। ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਵਾ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, 2u sin alpha upon g। u ਸੀਗੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਜਿਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਲਫਾ ਸੀਗਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ x ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ। ਆਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਅਲਫਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਦਾਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ, ਪਾਥ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਵਾ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਿਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਸੀ 2u sin alpha upon g। ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੇਂਜ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੇਂਜ u square sin 2 alpha upon g। ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ 45 ਐਂਗਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, 45 ਐਂਗਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਕੇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ u square by g ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਸਾਈਡ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੱਢੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸੌਖੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀ, y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਹੋਊਗੀ। ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ x 'ਚ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ x 'ਚ ਭਰੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆਊਗਾ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੇਂਜ ਆਪਾਂ 45 ਭਰਿਆ ਸੀ ਉਰੇ, sin 2 alpha 1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਹਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ, ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਹਾਈਟ ਉਦੋਂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਅੱਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਲੈ ਕੇ ਟਾਈਮ, ਫਿਰ y 'ਚ ਭਰਿਆ ਸੀ, y ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਸੌਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਪਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੌਖੇ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੋ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ। A body is projected upward with a velocity of 30 meter per second at an angle 30 degree with horizontal, neglecting air resistance। air resistance ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ। Find time of flight, range of body, maximum height attained by the body। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਸਿੰਪਲ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਲਫਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ u ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ u ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 30 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਅਲਫਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ। ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ 2u sin alpha upon g। 2u 30 sin 30 ਭਰਤਾ ਉਹ ਹਾਫ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, g ਹੁੰਦਾ 9.8। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 30 by 9.8, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ 300 by 9.8। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 150 by 49। 150 by 49। ਵੈਸੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਂਸਰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਡੀ ਨੀਚੇ ਗਿਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਆਏਗਾ 3.06 ਸੈਕਿੰਡ। ਦੂਜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਂਜ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੇਂਜ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ u square sin 2 alpha by g। u square ਭਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ 30 ਦਾ ਸਕੇਅਰ
ये आ गया sin 60 अपॉन 9.8, 900 sin 30 √3/2 अपॉन 9.8। बाकी सॉल्व कर लांगे जिन्ना आ गया वो आंसर। डेसीमल च कन्वर्ट करना डेसीमल च कन्वर्ट कर दो, जां इदां ही छड्डना इदां छड्ड दो, ये आंसर आ गया जी। इस तो बाद है अपना मैक्सिमम हाइट जां ग्रेटेस्ट हाइट पूछी उन्हें, ये हुंदी हैगी है जी u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, ये आ गई अपने को। चलो अगे देखो, तो इस क्वेश्चन च अपन दिता हुआ हैगा जिहड़ा u है इनिशियल वेलोसिटी ये 30 मीटर पर सेकंड है जी, जिहड़ा एंगल अल्फा है वो 30 डिग्री है। पहला पूछा उन्हें टाइम ऑफ लाइट आ गया 2u sin अल्फा बाय g, 2 × 30 sin 30 हाफ हो गया अपॉन 9.8, ये आ गया अपने कोल 300/98, ये 150/49 सेकंड आ गया। उरे तक छड़ दो तां भी ठीक है, डेसीमल च कन्वर्ट करना तां भी ठीक है जी, वैसे उरे तक ठीक है अपना आंसर। टाइम ऑफ लाइट तो बाद उन्हें पूछा है हॉरिजॉन्टल रेंज, ये होंगी हैगी आ u स्क्वायर sin 2 अल्फा बाय g, 30 द स्क्वायर sin 60 √3/2 अपॉन g, 900 √3/2 अपॉन 98, $450 आ गया इंटू 10 हो जाएगा 4500 √3/98, जो भी आ गया आंसर। अगे पूछी होनी ग्रेटेस्ट हाइट आ जाएगी u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा बाय g, u स्क्वायर 300, 30 का स्क्वायर आ गया sin स्क्वायर 30 हाफ 1/4 अपॉन g, ये आ गया 900 × 1/4 अपॉन 9.8। इन्हों सॉल्व कर लो जो आ गया आंसर। मैं डायरेक्ट फॉर्मूले ने इन्हों सॉल्व करके अपना आंसर बन जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और स्टेटमेंट देखो जी, ये है अपने को इफ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर अ प्रोजेक्टाइल इज r, कैपिटल R, show that greatest height attained is 1/4 r। ये पूछा उन्होंने कीता है उन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूले ने जी, जिहड़ी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है इहदा सिंबल उन्हें r लिया है, ये हुंदी की है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, ये हुंदी है जी u स्क्वायर बाय g, ये अपन r सिंबल दिता है। तो हुंदी कदों है जदों अल्फा की वैल्यू 45 हुंदी है, 5/4 हुंदी है, पता अपन। सो ठीक है, हुण उन्होंने पूछा हैगा कि जदों मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज r है उदों ग्रेटेस्ट हाइट जो है वो 1/4 r होगी। मतलब हुण ग्रेटेस्ट हाइट कढनी है अपने कितनी उच्ची जाएगा। इसका फॉर्मूला हुंदा है u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। हुण मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज तां आऊगी अगर अल्फा 5/4 है। जे ये दिती हुई है मतलब अल्फा 5/4 है तो अल्फा 5/4 पुट कर देवांगे इहदे च,
साइन 45 कितना होंगे 1/√2 का स्केयर बन गया अपॉन 2g। ये आ गया u स्केयर अपॉन 4g। तो u स्केयर अपॉन g की वैल्यू कितनी गिवन है आपां नूं r। तो ये की आ गया r/4। इदियां क्वेश्चन पहला सिंपल क्वेश्चन होंगे, अगे जाके हौली औखे हो जाने क्वेश्चन। ये सिंपल आ गया। ग्रेटेस्ट हाइट नूं आपां ने r/4 या 1/4 r शो करना सी। सो देखो अगे क्वेश्चन होर। अगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जी। इफ r is the range of projectile on a horizontal plane, h its maximum height for a given angle of projection, show that maximum horizontal range with the same velocity of projection is 2h upon r square by 8h। बस स्टेटमेंट ध्यान समझनी आपां की है जी। दिता है आपां नूं जिहड़ा r है, जे किसी एंगल ते आपां प्रोजैक्ट करा, मैं डायग्राम बना रहा सी छोटी जी पहला, किसी गिवन एंगल ते प्रोजैक्ट किया u वेलोसिटी नाल, वो एंगल अल्फा ले लिया, तो उस गिवन एंगल ते जो प्रोजैक्ट करांगे रेंज जो है वो r है, जो ग्रेटेस्ट हाइट है वो h दिता है। तो r का फॉर्मूला हो गया अपने को दिता है जी, r इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज दी हुई है, ये होंदा u स्केयर sin 2 अल्फा बाई जी एंड h है ग्रेटेस्ट हाइट, इसका फॉर्मूला होंदा जी u स्केयर sin स्केयर अल्फा बाई 2g। ये दोनों आपां नूं गिवन, इहनूं r मनना, आपां इहनूं h मनना। हुण नैक्सट लाइन की कही आ वो देखो ध्यान नाल, उन्होंने क्या हैगा शो दैट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू कितनी आऊगी, पर ना कंडीशन दी हुई है उन्होंने, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज विद सेम वेलोसिटी, जिहड़ी वेलोसिटी ने पहला प्रोजैक्ट किया सीगा उही वेलोसिटी ने प्रोजैक्ट करना। एंगल क्यों नहीं गिवन है, अंडरस्टूड है, जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की गल होंदी है उदों एंगल 45 होगा, एंगल का 45 आ, पर वेलोसिटी जो पहला लई सी आपां इहदे विच उही वेलोसिटी लैनी आपां हुण भी u, में वेलोसिटी u है, एंगल 45 हो गया। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज किहदे बराबर होगी, इहदे बराबर होगी जो दिता है 2h अपॉन, मतलब 2h प्लस r स्क्वायर बाय 8h। इनू आपां ने मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर होगी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होंदी है गौर नाल देखो, इनू आपां ने शो करना है u स्क्वायर बाय g, ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होंदी है, ये शो करना। u ए क्यों लिया, बिकॉज उन्हें स्पैशल मैंशन किया जो पहला वेलोसिटी, जो पहला आप वेलोसिटी मनी है u वही लेनी वेलोसिटी, एंगल का 45 होंदा है, मतलब आ चीज़ सॉल्व करके ये बराबर लैके आना कि यह चीज़ जो है ये एक्सप्रैशन है ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर होगा। तो देखो सिंपल ही गल, सिंपल जी गल किवें आ, एच ते आर पता आपां नूं, ये च वैल्यू भरनी है, सॉल्व करना, ये ऑटोमैटिकली आप ही आंसर बन जाएगा। ये 2h की वैल्यू भरती आपां ने, प्लस आर स्क्वायर किया बटा 8h, ये जस्ट वैल्यू भर के सॉल्व करना अपन, ये कट गया, ये आ गया u स्क्वायर बाय g साइन स्क्वायर अल्फा, ये 4 आ गया, एक जी नाल एक जी कट गया जी, साइन 2 अल्फा u स्क्वायर कट गया, u 4 होना सी, ये स्केयरिंग की r की 4 बननी सी, ये 2 पावर रह गई, साइन 2 अल्फा वैल्यू पर आ गया आप 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और स्केयरिंग करांगे जी, ये आ गया u स्क्वायर, स्केयरिंग की 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा की 4
साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा बाय जी, नीचे है 4 साइन स्क्वायर अल्फा, 4 साइन स्क्वायर अल्फा नीचे पिया सी जी, ये 4 ना 4 कट गया, साइन स्क्वायर ना साइन स्क्वायर कट गया, तो इन्होंने दोनों विचों ओवरऑल यू स्क्वायर बाय जी कॉमन निकल जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये 1 हो गया, ये यू स्क्वायर बाय जी हो गया, ये होंदी हैगी है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। यही आप शो करना सी, जिहड़ा ए वाला एक्सप्रैशन होएगा ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का होगा। जो सिंपल जो फॉर्मूले ने बस कल फॉर्मूले यूज कर रहे हैं आप, ऐ सिंपल जो स्टेटमेंट प्रॉपर समझाओगी बस कल फॉर्मूले ही ने अपने, तो फॉर्मूले ला के अपने आंसर सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो अगे नेक्स्ट क्वेश्चन करना अपने, ये स्टेटमेंट देख लो, 2 balls are projected from a same point in direction inclined to 60 degree and 30 degree to horizontal. If they attained same height, what is the ratio of their velocities of projection? पहला पार्ट। सेकंड पार्ट, what is the ratio, velocity ratio पूछी है, what is the ratio if they have same horizontal range, same horizontal range होगी तो velocity ratio कितनी होगी, अगर सेम हाइट होगी तो वेलोसिटी रेशो कितनी होगी, ये समझने वास्ते डायग्राम बना रहे हैं। पहले एक नूं 30 ते प्रोजेक्ट किया जी, एंगल 30 आ, ये इनिशियल वेलोसिटी u1 ले लो, एंगल 30 ते प्रोजेक्ट किया आप, एक नूं प्रोजेक्ट किया आपने 60 ते, एंगल ये एंगल 60 है। तो देखियो ध्यान, पहला प्रोजेक्ट किया हैगा, मान लो ये इदां जा रहा 30 वाला, यदी हाइट कितनी आ, ग्रेटेस्ट हाइट उन्हें मान लो आह अटेन की है, ये ग्रेटेस्ट हाइट आ, ये उन्हें अटेन की है, ये उन्हें बनाई है, कवर की है। हुण वो की कहा कि चलो ये u1 वेलोसिटी ने मारिया आप प्रोजेक्ट किया तो वो हाइट इन्नी बन गई, जे u2 वेलोसिटी ने दूजा 60 वाला आप करिए वो हाइट भी इन्नी ही होवे, मतलब लग रहा होगा इदा हाइट बराबर रखनी है, इदा कुछ होगा तो ही हाइट बराबर आएगी, जो बॉडी इदा जाएगी तो ही हाइट दोनों बराबर आएगी, ये हाइट जो है ये सेम होवे। तो ये पूछा कि चलो ये वेलोसिटी ना प्रोजेक्ट करा u1 नाल, ये u2 वेलोसिटी ना प्रोजेक्ट करता, जदों दोनों की हाइट सेम है उस केस दे विच u1 अपॉन u2 की रेशो की है। एक मिनट, पहला 60 एंगल की गल पहला करी उन्होंने, जो 60 एंगल की गल पहला करी हैगी है तो u1 मान लेने आप, कि जिहड़ी स्टेटमेंट दे विच जिहड़ी गल पहला की हुंदी है उही अगे रखना हुंदा। 60 डिग्री एंगल पहला की है गल, 30 डिग्री की बाद चों कीती हैगी, तो 60 डिग्री वास्ते u1 मान लेने आप, 30 डिग्री वास्ते u2 मान लेने। तो ये पूछा उन्होंने कि दसो इन्हां दी वेलोसिटी रेशो कितनी होवे कि दोनों की रेंज जो है, दोनों की ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड जो है वो सेम हो, ये उन्हें पूछा। क्वेश्चन सौखा ही है जी, मेरी समझ आऊगा तो ही है। सैकेंड पार्ट वो दे रहा, सैकेंड पार्ट की क्या वो देखते हैं, पहले फस्ट पार्ट सॉल्व करते हैं आप। ये पहला हाइट का ग्रेटेस्ट हाइट का फॉर्मूला की होंदा जी, u1 स्केयर साइन स्केयर अल्फा अपॉन 2g, u1 तां लिया वेलोसिटी u1, अल्फा और 60 डिग्री हैगा, तो यह फॉर्मूला होंदा हैगा जी, ये आ गया u1 स्केयर साइन 60 √3/2, ये 3/2 अपॉन 2g हो गया। तो ग्रेटेस्ट हाइट आप h सपोज कर लेने, हाँ ये h सपोज कर ली, दोनों केसिस h आलसो जो ग्रेटेस्ट हाइट है u2 वास्ते ये भी h ही है,
ਇਹਦਾ ਫਾर्मूला की बनेगा, उरे वेलोसिटी जो है u2 है तो एंगल जो है वो 30 है अपॉन 2g। ये आ गया अपने को u2 स्केयर sin 30, ये 3/4 होना सी, sin 30 1/2 हो गया, स्केयर किया 1/4 हो जाएगा अपॉन 2g। देयरफॉर h इस केस कितना आ गया u2 स्केयर 1/4 अपॉन 2g। ये दोनों हाइट ने तो दोनों सेम ने, एच ने, दोनों कंपेयर कर लिया अपने। देयरफॉर कितना आ गया जी u1 स्केयर इंटू 3/4 बटा 2g, u2 स्केयर इंटू 1/4 बटा 2g। ये कट गया, ये भी कट गया, तो u1 स्केयर बटा u2 स्केयर आ गया 1/3, तो u1 अपॉन u2 आ गया 1/√3। आ रेशो आ गई, मतलब देयरफॉर u1 रेशो u2 बन गया 1/√3। ये पूछा से उन्होंने। मैं कल कंपेयर किया आप सिंपल, अपना आंसर आ गया। स्केयर हटा के प्लस माइनस तो नहीं पाया, वेलोसिटी पता होवे, प्लस का मतलब होता कि बॉडी अगे जा रही है, माइनस का मतलब होता कि बॉडी पिछे आ रही है। वेलोसिटी नैगेटिव होवे तो वेलोसिटी पार्टिकल पिछे वापस आ रहा, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव होवे तो बॉडी अगे जा रही है। ये दोनों बॉडी अगे जा रही हैं, इस करके दोनों u1 u2 पॉजिटिव होंगे। जो पॉजिटिव होंगे तो रेशो पक्का पॉजिटिव आएगी, तो माइनस नहीं पाया इत्थे। सो ये पहला पार्ट सीगा जी अपना। हुण सैकेंड पार्ट की कहा वो देखो, सैकेंड पार्ट यही क्वेश्चन है जी। एक आपां 30 ते प्रोजेक्ट किया u2 वेलोसिटी है, एक आपां 60 ते प्रोजेक्ट किया। ये एंगल जो है ये 60 डिग्री है। दोनों की जो रेंज है वो सेम हो गई, मतलब आ प्रोजेक्ट किया, ये बॉडी इत्थे गिर गई, इन्ना डिस्टेंस कवर किया, ये हॉरिजॉन्टल रेंज होगी। तो दूजा आप किन्ने एंगल से प्रोजेक्ट करिए कि वो भी इत्थे ही गिरे। जिहड़े बच्चे ध्यान नाल पढ़ रहे हैं शायद पता होवे कि हॉरिजॉन्टल रेंज दो तरीके नाल बराबर आ सकती है जे सेम वेलोसिटी नाल प्रोजेक्ट करांगे। किहड़े-किहड़े, एक तो एंगल अल्फा, एक π/2 माइनस अल्फा, इन्हां दोनों वास्ते हॉरिजॉन्टल रेंज सेम आऊगी जे सेम वेलोसिटी नाल प्रोजेक्ट करांगे। हुण एक एंगल 30 डिग्री आ, दूजा 90 माइनस 30 कितना 60, मतलब कि सेम वेलोसिटी नाल दोनों वेलोसिटियां सेम होण, एक 30 ते प्रोजेक्ट होवे, एक 60 ते प्रोजेक्ट होवे, तो दोनों दियां हॉरिजॉन्टल रेंज सेम आऊगी। ये लास्ट पिछले लैक्चर च कीता सी आपां ने। सीधा भी कह सकते हैं एंगल 30 60 ने, तो दोनों वेलोसिटियां सेम चाहिए ने, तां ही इक्को थां करनगियां सेम, मतलब कि इन्ना रेशो कितनी आऊगी 1 होएगी। जे नहीं गल समझ आ रही कोई गल नहीं, जिवें आपां इदां प्रूव किया उदां प्रूव करांगे। हॉरिजॉन्टल रेंज आप आर सपोज कर लेने। पहला हॉरिजॉन्टल रेंज जो है ये वास्ते आऊगी, फॉर्मूला होंदा u1 स्केयर sin 2 अल्फा अपॉन g। ये आ गया u1 स्केयर sin 120/g। हॉरिजॉन्टल रेंज आप आर सपोज की है, तो आर का फॉर्मूला आ गया अपने को u1 स्केयर sin 120 sin 180 माइनस 60 किया sin 60, तो sin 60 जोड़ा होंदा √3/2 होंदा। यह हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई। ये सैकेंड पार्ट कर रहे हैं। हुण दूजी हॉरिजॉन्टल रेंज कड्ढी आपां, वेलोसिटी u2 है अते जो एंगल है वह 30 डिग्री है, sin 60 बन गया। देयरफॉर आर आ गया u2 स्केयर sin 60 √3/2 अपॉन जी। फ्रॉम 1 and 2 किया
u1 square under 3/2g u2 square under 3/2g। ये कट गया, ये भी कट गया, तो u1 is equal to u2। This implies u1 upon u2 1:1। Therefore u1 ratio u2 1:1। ये सीधा भी जो पिछे गया सीधा भी कह सकते या कट के भी दिखा सकते हैं आप। ये क्वेश्चन सीगा बस स्टेटमेंट का ध्यान नाल पढ़नी है, फॉर्मूले याद होने चाहिए ने, क्वेश्चन सौखे ने सारे। हुण नैक्सट क्वेश्चन एक होर करवाना है, ये लास्ट क्वेश्चन है जी। ये स्टेटमेंट की देख लो। द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज h एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज अल्फा। फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ टाइम व्हेन इट इज ऑफ हाइट, इट इज अ हाइट ऑफ h साइन स्क्वायर अल्फा। फिर डायरा बना के समझते हैं की कहा की है उन्होंने। किसी वेलोसिटी ते u वेलोसिटी गिवन नहीं हैगी पर एंगल गिवन। किसी u वेलोसिटी ते बॉडी प्रोजेक्ट की, वह बॉडी ने ये वाला पाथ फॉलो किया, जिहड़ी ये हाइट आ मैक्सिमम हाइट ये आपां नूं h गिवन है, दिती हुई है हाइट ये h। इस तो बाद उन्होंने पूछा हैगा जिहड़ा h साइन स्क्वायर अल्फा हाइट आ, दिमाग लगा सकते हो, साइन की वैल्यू 1 तो घट होएगी, अल्फा 90 तो घट है, h ना मल्टीप्लाई करांगे 1 तो घट में h तो छोटा आएगा। चलो तो ये हाइट जो है मान लो जिहड़ी h साइन स्क्वायर अल्फा हाइट है इत्थे है मान लो, तो ये हाइट दो थां होएगी, सेम हाइट इत्थे भी होएगी। इको हाइट ते पार्टिकल दो बारी होगा, एक तो जान लगे होएगा, एक जो वापस नीचे ऊपर जा रहा होगा, एक जो वापस नीचे आ रहा होगा, तो दो टाइम डिफरेंट टाइम से उसकी हाइट सेम होएगी। एक तो टाइम है मान लो इनू T1 कह लो, जो जा रहा सी उदों ये हाइट आई है, एक जो इत्थे पहुंच के इत्थे पहुंचा ये भी हाइट सेम ही है, ये टाइम T2 ले लो। अंडरस्टूड है जो T2 है T1 ना बड़ा होएगा, तो आपने डिफरेंस ऑफ टाइम फाइंड करना, T2 माइनस T1 कितना होएगा, ये चीज़ आप फाइंड करनी। चलो फाइंड करते हैं आप किवें फाइंड होगा। ये एक हाइट की गल की उन्हें, ये ग्रेटेस्ट हाइट नहीं हैगी h साइन स्क्वायर अल्फा, ये ग्रेटेस्ट हाइट नहीं है, ये सिंपल वाई दिता है अपने, सिंपल वाई दिता होया हैगा, तो ये फॉर्मूला यूज करांगे वाई वाला। तो चेक करते हैं अपन गिवन की है, जो ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड है वो h, इसका फॉर्मूला की होंदा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। ये आ गया अपने को। हुण नाओ अपन पता जिहड़ा वाई का फॉर्मूला होंदा है u साइन अल्फा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। हुण ये दिमाग का करना कि फॉर्मूला किहड़ा यूज होगा, ग्रेटेस्ट हाइट नहीं हैगी, ये हाइट कोई भी हाइट है, कोई भी हाइट मतलब कोई भी वाई दिता होया, जे कोई भी वाई दिता होया है तो ये वाई वाला फॉर्मूला आप यूज करांगे। हुण ये वाई दिता की होया हाइट आपां नूं h साइन स्क्वायर अल्फा u साइन अल्फा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये दिता है जी अपन। उस तो बाद
हुण टी च क्वाड्रेटिक जिवें पिछले क्वेश्चन करते आ रहे थे टी च क्वाड्रेटिक बन गए टी के दो आंसर आएंगे दोनों आंसर कट के एक का नाम T1 होगा एक का नाम T2 होगा दोनों सबट्रैक्ट कर देंगे अपना आंसर आ जाएगा तो इतों आप करे ये एलसीएम ले लो नीचे 2 एलसीएम आएगा 2 उधर ले जाओ 2H साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2U साइन अल्फा T माइनस हाफ माइनस GT स्क्वायर आ गया इन्हें इधर ले आओ जी ये आ गया GT स्क्वायर माइनस 2U साइन अल्फा T प्लस 2H साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0 ये टर्म सारी इधर लिया ये दो तरीके हैं करन दे एक तो आप दो तरीके किया सी एक सम ऑफ रूट पता अपन दो रूट्स की मनांगे आप T1 T2 सम ऑफ रूट कढ़ लवांगे प्रोडक्ट ऑफ रूट कढ़ लवांगे उतों T2 माइनस T1 की वैल्यू कढ़ लाँगे एक तरीका वो है एक तरीका होर करा सी मैं उस तरीके कर रहा ये जो T की वैल्यू कढ़ते हैं आप कि T की वैल्यू कितनी आऊगी सो देखो किवें ये रब कर दें ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ therefore T ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ -B प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस 8H साइन स्क्वायर अल्फा G अपॉन 2G ये फॉर्मूला यूज किया आपने B स्क्वायर माइनस B प्लस माइनस B स्क्वायर माइनस 4AC रूट अपॉन 2A इथों U आप सपोज किया गिवन नहीं है तो U की वैल्यू कटांगे आप U की वैल्यू आएगी U स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2GH अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा ये आप यूज करांगे ये आ गया जी 2U साइन अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू 2GH अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा